Hello everyone, myself CA Rohit Fulwani. We hope you and your family are safe and doing well. We have got a good response from previous webinars on Ind AS. Hope we have clarified all the doubts and queries and we are happy to help you and guide you again. So we are back with Ind AS. In this webinar, we will be discussing about Ind AS 27 separate financial statements. I shall request you to post your queries in the comment section below so that we can reply to your queries at the end of the webinar. Do subscribe to our channel for receiving regular updates. So what is the need and objective of separate financial statements or Ind AS 27? When separate financial statements are presented by those entities who have a subsidiary, associate or joint venture, there have been practical concerns about the relevance of some of the requirements under Ind AS which is converged with IFRS. Because the focus of Ind AS is generally on preparation of consolidated financial statements, and hence the question arises how to deal with some accounting issues in separate financial statements. For example, lenders and other creditors argue that the usefulness of separate financial statements can be impaired when entities with the same group enter into transactions with each other that are not necessarily structured or priced on an arm's length basis. In such circumstances, the amount reported in separate financial statements reflect internal transaction and not the transaction with third non-related parties. So one of the accounting issues which is required to be dealt with in separate financial statements is of accounting and disclosure requirements for investment in subsidiaries, joint ventures and associates. The objective of this standard is to prescribe the accounting and disclosure requirement for investment in subsidiaries, joint venture and associates when an entity prepares separate financial statements. So now we'll move towards PPT and see what Ind AS 27 speaks about. Ind AS 27 separate financial statements. तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का वो देख लेते हैं. आपको ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई करना है वो पहले देख लेते हैं. अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स है, तो आपको ये स्टैंडर्ड के पास आना है, इंड AS 27 के पास, और देखना है कि आपको क्या अकाउंटिंग फॉलो करनी है और क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है. ठीक है, तो पहले ये ऑब्जेक्टिव समझ लो आप. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स नहीं है तो आपको इंड AS 27 के पास आना ही नहीं है. अगर आपके पास सब्सिडरी, जेवी या एसोसिएट्स है तो आप ये इंड AS 27 के पास आओ. आप देखो उसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है और वही इन्वेस्टमेंट पे ये स्टैंडर्ड लगेगा. ठीक है. The standard shall be applied in accounting for investment in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity elects or is required by law to present separate financial statements. अब इसकी लिटरल मीनिंग में आपको नहीं जाना है. इसकी लिटरल मीनिंग क्या बोलती है? When an entity elects or is required by law. इंडियन केस या इंडियन सिनेरियो में इट इज नॉट पॉसिबल कि एंटिटी के पास चॉइस दिया जाए कि आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है. ऐसा एंटिटी के पास ऑप्शन नहीं होता है, वो मैंडेटरी होता है. इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. इट इज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 129 प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स में. लेकिन रिक्वायरमेंट इन इंडिया क्या है? जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 में आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो वो बोलता है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है और उसके साथ आपको एडिशनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है. लेकिन इंड AS बोलता है कि आपको पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना है, लेकिन इन एडिशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है. तो आप ऐसे ही लिटरल मीनिंग में मत जाओ दोनों के, जॉइंट रीडिंग करो दोनों की और एक कंक्लूजन पे आ जाते कि उसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास कोई सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट्स है तो आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही बनानी है. एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
आप कहीं बार बोलोगे कि सर जी ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, हमने तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखा है बैलेंस शीट पे। स्टैंड अलोन वर्ड देखते हैं हम, सेपरेट तो देखते ही नहीं है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हाँ, अभी देखो इंडियन सिनेरियो में कैसा है कि आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वर्ड स्टैंड अलोन ही दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपको सेपरेट नहीं दिखाई देगा। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब वर्डिंग्स है वो IFRS के साथ हमने कन्वर्ज किए इंडिया ने, तो वो वर्डिंग सेपरेट वहां से वो लोग लेके आते, ठीक है, IFRS से लेके आते। तो अब कैसा है ना कि आगे आगे वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बोलेगा। तो अब मैं आपको अभी से बताता हूं कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स है, ठीक है, तो हमको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा और एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है ही नहीं, तो दैट विल नॉट बी योर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सब IFRS और इंड एस का लैंग्वेज है। आप इंडियन सिनेरियो में देखोगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, सब्सिडरीज या एसोसिएट्स है या नहीं है, तो उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कहा जाता है, ठीक है। आपका कंपनीज एक्ट 2013 ये सब गवर्न करता है, वो सब आपको बोलता है कि आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, और इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको क्या बोला, जब आपके पास सब्सिडरी है, या तो आप जॉइंट कंट्रोल करते हो इन्वेस्टी पे, या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट्स, ठीक है। तो ये केस में आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। अब स्टैंडर्ड ये क्लैरिफाई करता है कि देखो अब हम इंड AS 27 देख रहे हैं, लेकिन इंड AS 28 क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऐसी इन्वेस्टी है जिसके ऊपर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हो, या तो आप जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट वेंचर बोल सकते हो, मेनली जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट है, तो वो केस में इंड AS 28 बोलता है कि अपने को इक्विटी मेथड से उसको अकाउंट करना है। तो इक्विटी मेथड से जब अकाउंटिंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसे हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बोलेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इंड AS 28 पढ़ेंगे। तो वो क्या बोलते हैं इंड AS 28 कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स है, तो आपको कंसोलिडेट करना है इक्विटी मेथड के द्वारा, और आपके पास सब्सिडरी है तो आप 110 इंड AS 110 उसके हिसाब से आप उसको कंसोलिडेट करते हो। तो आपके पास सब्सिडरी है तो 110 में आप कंसोलिडेट करते हो, आपके पास जेवी है या एसोसिएट है तो आप उसको भी कंसोलिडेट करते हो, लेकिन इक्विटी मेथड से वो होता है इंड AS 28 में कवर, तो उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बोलते। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको अलग से बनानी है अदर देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कंसोलिडेट करते हैं सब्सिडरी को, और जेवी या एसोसिएट्स रहेगा तो हम इक्विटी मेथड से उसको कंसोलिडेट करते हैं एज पर इंड AS 28, ठीक है। तो 110 और 28 ये दो इंड AS है, तो वो दोनों केस में हम कंसोलिडेट करते हैं। तो उसके अलावा हमको अलग से भी एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, वो केस में जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है या एसोसिएट्स है या जॉइंट वेंचर है। तो अब वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है वो इंड AS 27 में बताता है। तो आगे हम देखते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज है या एसोसिएट्स है या जॉइंट वेंचर है, तो उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है ही नहीं, तो उसे मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन ये सब IFRS या इंड AS का लैंग्वेजेस है,
आप अगर देखोगे कि नॉर्मल केस सिनेरियो कंपनीज एक्ट 2013 का रिक्वायरमेंट देखोगे तो आप ऐसा किधर भी नहीं देखोगे कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वर्ड सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने को यही देखना है कि अगर मेरे पास सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है या जेवी या एसोसिएट्स में है तो मेरे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है और स्टैंड अलोन बनाना है। अगर मेरे पास नहीं है वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी या जेवी या एसोसिएट नहीं है तो मेरे को सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। When an entity prepares separate financial statements, it shall account for investment in subsidiaries, JV and associates either at cost or in accordance with Ind AS 109. अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज है या जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स है तो मेरे को दो ऑप्शन है रिकॉर्ड करने का, या तो कॉस्ट पे या तो इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट, मैं अभी सब्सिडरी जेवी या एसोसिएट की बात नहीं करूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास जैसे भी इंड AS 109 के हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन रहता है। ठीक है, एक कॉस्ट, एक FVTPL, एक FVTOCI। तो इसमें भी कैसा है ना कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स है तो आपको इंड AS 109 के पास नहीं जाना है, आपको इंड AS 27 में आना है। इंड AS 27 क्या बोलता है, आपको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। आपको कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करना है तो आप इंड AS 109 में जाओ, फिर आप 109 में जाओ, पहले आप 27 में आओ, 27 में आओ, देखो कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड करना है तो कॉस्ट पे करो, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है 109 का भी रिकॉर्ड करने पे, या तो FVTPL पे करो या तो FVTOCI पे करो, दोनों अलाउड है। तो अगर आपने ऑप्शन नहीं लिया FVTOCI का तो ऑटोमेटिक वो FVTPL में ही जाएगा। तो नॉर्मली हम देखो, आप डाउनलोड करोगे आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी सारी कंपनीज का, लिस्टेड कंपनीज का, तो आप ऐसा देखोगे कि फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, फिर इन्वेस्टमेंट एट FVTPL, FVTOCI। ठीक है, ऐसे तीन आप देखोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स, फिर आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जनरली आप कॉस्ट पे ही आप उसको देखोगे कि वो रिकॉर्ड किया गया। कंपनी जनरली दो वे में बाइफरकेट करता है, इन्वेस्टमेंट अदर देन सब्सिडरीज, जेवी, एसोसिएट्स, उस पे फिर जो भी कॉस्ट FVTPL, FVTOCI, फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, फिर वो जनरली कॉस्ट पे ही करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो अब मैंने ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज, जेवी या एसोसिएट्स हमें या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है या तो हमें उसको AS 9 के हिसाब से करना है। तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिए तो हमें ये प्रोविजन काम का है। ठीक है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए तो हमें ये प्रोविजन पढ़ना है। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर एट कॉस्ट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 105, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस when they are classified as held for sale। तो अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जेवी या एसोसिएट्स है, तो अगर आई एम होल्डिंग इट फॉर सेल तो हमको इसकी अकाउंटिंग एज पर इंड AS 105 के हिसाब से करनी है, प्रोवाइडेड हमने इन्वेस्टमेंट्स उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए। ठीक है, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं की थी, अगर हमने उसको एज पर इंड AS 109 के हिसाब से रिकॉर्ड किए तो हमें उसको फिर उसी के प्रोविजन के हिसाब से कंटिन्यू करना है, तो हमें इंड AS 105 के हिसाब से नहीं करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स एट फेयर वैल्यू। अपना पैरा 18 ऑफ इंड AS 28। ठीक है, अब तक हमने इंड AS 28 का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हम आगे वो भी बनाएंगे। तो इंड AS 28 के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं कि अगर
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो हमें इंड एस 28 बोलता है कि आपको इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन फॉलो करना है, प्रोवाइडेड वो एक एग्जेम्पशन देता है। क्या एग्जेम्पशन? कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने वाली एंटिटी इज अ वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन या म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट या कोई सिमिलर एंटिटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट लिंक इंश्योरेंस फंड्स, तो हमें इंड एस 28 ये चीज के लिए एग्जेम्पशन देता है। तो वो बोलता है कि आपको इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन नहीं करना है ये केस में, तो हम उसको वो इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने सीएफएस में? तो हमको वो स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 109, ठीक है। तो आप अगर ये एग्जेम्पशन अवेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने अगर पैरा 18 ऑफ इंड एस 28 के हिसाब से उसको कंसोलिडेट नहीं किया है और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से उसको अकाउंटिंग की है इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 109, तो आपको एसएफएस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसी तरह रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसी तरह रिकॉर्ड करने का मीनिंग क्या हो गया? आपको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ही रिकॉर्ड करना है, सेम अकाउंटिंग फॉलो करनी है जो आपको सीएफएस में आपने फॉलो की है, सेम, ठीक है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू, अपना पैरा 31 ऑफ इंड एस 110 वो क्या बोलता है कि अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो आपको एग्जेम्पशन दी गई है कि आपको सब्सिडरी कंसोलिडेट नहीं करनी है, एग्जेम्पशन। तो अगर वो सब्सिडरी कंसोलिडेट नहीं करनी है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट की? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इन अकॉर्डेंस विद 109, ये आपको इंड एस 110 बताता है। तो अगर आप इंड एस 110 के हिसाब से उसको अकाउंटिंग कर रहे हो अपने सीएफएस में, तो एसएफएस में भी सेम अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है। ऐसा अपने को स्टैंडर्ड बोलता है। अब चेंज इन स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अब मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए एग्जेम्पशन दी गई है इंड एस 110 में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी रहेगी तो वो पेरेंट को अपनी सब्सिडरी कंसोलिडेट नहीं करना है, वो एग्जेम्पशन दिया गया है अपना इंड एस 110 में। तो अब ये देखना है कि वो स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी बदल जाती है तो उसमें उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? समझो कि एक पेरेंट है, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाती है, अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं थी, ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं थी तो आप कंसोलिडेट करते रहोगे, एक अच्छा सीएफएस बनाते रहोगे इंड एस 110 के हिसाब से, अब वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गई। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए तो आपको एग्जेम्पशन दिया गया है 110 में, आपको कंसोलिडेट नहीं करना है, तो आप एसएफएस में कैसे उसकी अकाउंटिंग करोगे? उसकी अकाउंटिंग क्या होगी वो मैं बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शैल बी अकाउंटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इंड एस 110 आपको बोलता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, पेरेंट एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो आपको सीएफएस नहीं बनाना है, सीएफएस कंसोलिडेट नहीं करना है, आई मीन कंसोलिडेट नहीं करना है। तो कंसोलिडेट अगर नहीं करना है तो एसएफएस में भी आपको सेम अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी जो आपको 110 में दी गई है। 110 में क्या बोलता है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट को, तो आपको वो अकाउंटिंग करनी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। तो आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से किया, तो एसएफएस में भी आपको सेम चीज फॉलो करनी होगी जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शैल बी अकाउंटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब जो कैरिंग अमाउंट थी पहले, स्टेटस चेंज होने के पहले जो कैरिंग अमाउंट थी, ठीक है, और अब उसकी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब पेरेंट चीजेस टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, पहले इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी तो आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से उसको अकाउंटिंग करते थे, ठीक है। तो अब वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही,
तो आपको तो प्रॉपरली उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अभी, तो आप कंसोलिडेट भी करोगे। तो आप एसएफएस में उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो आपने पहले एसएफएस में आपने उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस बनाया रहेगा पहले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी की अकाउंटिंग होती है थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही, तो अब उसको कैसे अकाउंट करोगे एसएफएस में? अकाउंटिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शैल बी एट कॉस्ट, ठीक है। अब उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। दो ऑप्शन है, या तो आप कॉस्ट पे करोगे या तो एज पर इंड AS 109 करोगे, मैंने पहले बोला। तो अगर आप कॉस्ट पे करते हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट वही होगी जो उसकी फेयर वैल्यू है सब्सिडरी की एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेटस। जब स्टेटस चेंज हुआ तो उसी दिन पे उसकी फेयर वैल्यू क्या है वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी, अगर आप कॉस्ट मॉडल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो उसकी कॉस्ट बन गई, ठीक है। अगर आप अगर इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू के बेसिस पे करना चाहते हो तो फिर आप कंटिन्यू करो टू अकाउंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एज पर इंड AS 109, क्योंकि आप पहले भी आप फेयर वैल्यू पे ही कर रहे थे, उसको इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी तो भी आप फेयर वैल्यू पे ही करते थे, क्योंकि इंड AS 110 भी हमें बोलता है कि फेयर वैल्यू पे करना है। सिमिलरली एसएफएस भी हमको बोलता है कि फेयर वैल्यू पे करना है अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो अगर अभी इन्वेस्टमेंट एंटिटी का स्टेटस चला जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। कॉस्ट क्या होगी? फेयर वैल्यू वो डेट पे जब चेंज हुआ स्टेटस, या तो आपके पास ऑप्शन है फेयर वैल्यू का भी एज पर इंड AS 109 जो मैंने आपको बोला था। तो इंड AS 109 के हिसाब से भी आप करोगे, तो पहले भी आप फेयर वैल्यू पे कर रहे थे, अभी भी फेयर वैल्यू पे करोगे, तो कंटिन्यू करो आपका जो भी प्रोसेस है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिविडेंड, अब मेरी इन्वेस्टमेंट है इन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं डिविडेंड को, जो सब्सिडरी से या जेवी एसोसिएट से हमें पेरेंट को मिलता है, तो उसकी अकाउंटिंग कब और कैसे करेंगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि वो डिविडेंड की अकाउंटिंग, डिविडेंड को हम रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस में तब करेंगे जब राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश होगा, तब जब डिक्लेयर होगा डिविडेंड तब उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। जब राइट टू रिसीव द डिविडेंड एस्टैब्लिश होगा तब वो डिविडेंड की अकाउंटिंग होगी। तो मैंने तो आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर तो आपको कॉस्ट पे करना है रिकॉर्ड, या एज पर इंड AS 109 के हिसाब से करना है, ठीक है। लेकिन आप बोलो कि अभी डिविडेंड मिला तो डिविडेंड की अकाउंटिंग आप बोल रहे हो कि जब राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश तो आपको डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करोगे डिविडेंड, ठीक है, क्रेडिट करोगे, और दूसरी एंट्री जब डेबिट करने जाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट में रिकॉग्नाइज करने को नहीं देता है स्टैंडर्ड, आपको सेपरेट लाइन आइटम करके रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज एन एसेट रिसीवेबल करके, ठीक है। आप एसेट रिसीवेबल डिविडेंड रिसीवेबल करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और क्रेडिट आप कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को जब आपका राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिशमेंट होता है तब। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट डिस्पोज कर देते हो या व्हेन इट इज सोल्ड तो, या इट इज अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। अब डिफरेंस जो होगा कंसिडरेशन पेड और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट एज गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। जो डिफरेंस होगा उसको आपको इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है एज गेन और लॉस, ठीक है। अब अगर इंड AS 109 के हिसाब से आप रिकॉर्ड करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स एसएफएस में, तो आपको इंड AS 109 में जाना है और देखना है कि वो डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स क्या बोलता है इंड AS 109 का, उसके हिसाब से आपको
डिस्पोजल की अकाउंटिंग करनी है। इंड एस 109 हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा 109 पे भी, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब FAQs देख लेते हैं। In the separate financial statements of parent entity, investments in subsidiaries that are not classified as held for sale should be accounted for। अब अकाउंटिंग कैसे होती है इन्वेस्टमेंट्स की SFS में? हमने क्या डिस्कस किया था? कॉस्ट पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉस्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है? इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है? एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109। और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहा है? डी ऑप्शन, यूजिंग द इक्विटी मेथड। तो हमने डिस्कस किया था, या तो आप कॉस्ट पे भी कर सकते हो या तो इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109 के हिसाब से भी कर सकते हो। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सी है उसका। अब सेकेंड FAQ देखते हैं। A Limited has acquired an investment in an subsidiary B Limited with a view to dispose of this investment within 6 months. अब the investment in subsidiary has been classified as held for sale and is to be accounted for in accordance with Ind AS 105. The subsidiary has never been consolidated. How should the investment in subsidiary be treated in the financial statements? अब क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप? फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या लिखा है, परचेस अकाउंटिंग शुड बी यूज्ड, तो नहीं, ये भी नहीं है। इक्विटी अकाउंटिंग शुड बी यूज्ड, तो SFS में तो इक्विटी अकाउंटिंग होती ही नहीं है। तो सी क्या बोलता है? सब्सिडियरी शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड बट इंड AS 105 शुड बी यूज्ड। तो सॉल्यूशन देखो वही है। तो आपका करेक्ट आंसर है सब्सिडियरी शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड बट इंड AS 105 शुड बी यूज्ड। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कॉस्ट पे कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि ठीक है, आपने कॉस्ट पे तो कर ली। अब इंड AS 105 क्या बोलता है? अगर वो इन्वेस्टमेंट आप रखे हो अपने पास फॉर एज हेल्ड टू सेल, तो आपको 105 के पास जाना है और उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, और उसको कंसोलिडेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When transaction cost, acquisition related cost should be considered as part of the initial measurement of investment in subsidiaries, joint ventures or associates, accounted for as cost or should be expensed in separate financial statements. अब वो बोलता है कि acquisition related cost उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे या अकाउंटिंग करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा शुड बी अ पार्ट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स, ठीक है। जब कॉस्ट को उसको मेजर करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसका पार्ट होता है। अब दिस व्यू इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट and are directly attributable to the acquisition of an investment in subsidiary, joint venture and associate. तो हमेशा transaction cost should be a part of initial measurement of investments in subsidiaries, JVs or associates, ठीक है, which are accounted for at cost. अब next question क्या है? X Limited has equity investment in LLP, ठीक है। अब LLP में इन्वेस्टमेंट है X Limited की, और X Limited has joint control over LLP and assess that the investment in LLP is a joint venture. Investment in LLP is a joint venture. ये JV का केस है, ठीक है। How investment in LLP be accounted for in separate financial statements of X Limited? Whether profit share from LLP will be adjusted to the carrying amount of investment in LLP in separate financial statements of X Limited, वो देखना। अब जो प्रॉफिट शेयर है जो LLP से मिला है, ठीक है, X Limited को, तो X Limited उसकी अकाउंटिंग SFS में कैसे करेगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करेगा, वो देख लेते हैं। तो पहले तो हमको ये देखना है कि इंड AS 27 क्या बोलता है। आपको इन्वेस्टमेंट्स किस पे रिकॉर्ड करना है? एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109, ठीक है। तो दूसरा, अब ये केस क्या है कि X Limited के पास जॉइंट कंट्रोल है ओवर LLP, ठीक है, और LLP जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर है तो हमें
तो ये कहा गया या तो कॉस्ट यूज करो, कॉस्ट मॉडल यूज करो और इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109 करो। तो हम समझिए कि उसको कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने कॉस्ट मॉडल पे उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब जो उसका प्रॉफिट शेयर है एलएलपी का, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट शेयर ऑफ एलएलपी भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर ऑफ एलएलपी रिकॉर्ड वही बेसिस पे करेंगे जो बेसिस पे हम डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं। मैंने डिविडेंड के लिए क्या बोला था? वो रिकॉग्नाइज होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एंड व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। तो वही प्रॉफिट शेयर जो मिल रहा है एलएलपी से, वो केस में भी वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो रिकॉग्नाइज तो कर लेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो कि उसको इन्वेस्टमेंट्स में तो रिकॉर्ड नहीं करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको सेपरेट लाइन आइटम के बेस पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रॉफिट रिसीवेबल फ्रॉम एलएलपी करके, और दूसरी इफेक्ट आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दे सकते हो। लेकिन आप जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, उसको आपको कॉस्ट पे ही रखना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। Therefore, adjustment of profit share from LLP to the carrying amount of investment in LLP in its separate financial statements is not permitted. Not permitted. प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एलएलपी जो रहेगा वो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट करने के लिए परमिट नहीं करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करो व्हेन द राइट टू रिसीव इट्स प्रॉफिट शेयर इज एस्टैब्लिश्ड, और दूसरा इफेक्ट आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दे दो। ठीक है, तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। जय हिंद, जय भारत।